Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. I'm Upasna Luthra, Verbal Ability, Reading Comprehension, and GDPI trainer. So today's series is going to be about solving reading comprehension. We are going to be starting from really basic RCs. ठीक है, बहुत easy level से start करेंगे, but we are going to build up our RC skills gradually. ठीक है, जो भी आपको मुश्किलें आती हैं RC की, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं. राइट. अनदर इंफॉर्मेशन हेयर इज ये टेलीग्राम चैनल है हमारा MBA पाठशाला का. जो भी आरसी इस वीडियो में कवर होगा और फर्दर जितने भी आरसी कवर होंगे वीडियोस में, वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. सेम नेम से मिल जाएंगे, लाइक दिस इज आरसी सेशन 1. तो आरसी सेशन 1 PDF विल बी अवेलेबल ऑन दिस ग्रुप. यू कैन ज्वाइन. राइट, चलिए, सो लेट्स बिगिन. इसमें अप्रोच ये रहेगा, आप पहले अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, फिर यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड चेक आउट कि क्या एक्सप्लेनेशन है. अगर सपोज किसी वर्ड की या किसी लाइन की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं बनी है, सो देन आई विल बी ऑफ कोर्स एक्सप्लेनिंग लाइन बाय लाइन हेयर. तो आप वो यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, ठीक है. और क्वेश्चंस का भी डिस्कशन होगा. यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली जम्प टू क्वेश्चन डिस्कशन. चलिए, लेट्स स्टार्ट. इट इज ब्रेकफास्ट टाइम. You have been looking forward to eating a nice ripe banana ever since you woke up. Now, note here, looking forward to eating. बहुत से uh, many people do not know this usage कि looking forward to के बाद verb plus ing form लगता है, ठीक है. Just when you reach for the delicious piece of fruit on your counter, you see something that makes you much less hungry. A swarm of fruit flies. ये एक collective noun है, a swarm, ठीक है, fruit flies का group, ठीक है. तो fruit flies होते क्या है? Let's see. Fruit flies are tiny insects that are attracted to ripe or rotting fruits and vegetables. Rotting क्या होते हैं? जो गलने लगे हैं, ठीक है, सड़ने लगे हैं. And ripe मतलब पके हुए अच्छे से, ठीक है. द फ्लाइज नॉट ओनली ईट द फ्रूट, कि ना सिर्फ वो फ्रूट खाती हैं. ये एक बहुत अच्छा यूसेज है ग्रामर स्ट्रक्चर का. नॉट ओनली प्लस वर्ब है ना, बट दे ऑल्सो, दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, दे ऑल्सो ले देयर एग्स देयर. वो वहाँ पे अंडे भी देते हैं. ले मीन्स अंडे देना. अ सिंगल फ्रूट फ्लाई कैन ले अप टू 500 एग्स. अप टू मीन्स वहाँ तक, मैक्सिमम ऑफ 500 on the surface of a piece of fruit. Within 8 days में, the fruit flies that hatch from these eggs are full adults that can then lay their own eggs. So within 8 days में ये circle repeat होना start हो जाता है. As you can see, what might start out as a small fruit fly problem can become very large very quickly. तो जो एक फ्रूट फ्लाई प्रॉब्लम छोटी सी थी बिगिनिंग में, एक दो फ्लाइज थी, so that can escalate really rapidly. Although there is a chance fruit flies can carry germs onto your food, कि हो सकता है कि वो germs भी carry कर रही हूँ, this is not very likely. Likely मतलब possibility नहीं है इसकी, ठीक है. It's not very probable. Fruit flies are annoying, but they probably will not hurt you. उनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, because they are such a nuisance. Underline the word nuisance. Nuisance मतलब तंग करते हैं, मतलब irritate करते हैं ना. They are just a bother. ठीक है. However, most people want to get rid of these pesky मतलब वही again irritating bugs as quickly as possible. Some people use pesticide sprays on the fruit flies. Although this will kill the flies, it will also spread harmful poison all over your kitchen. तो obvious सी बात है, अगर आप अपने किचन में कुछ स्प्रे करेंगे तो वहाँ पे फ्लाइज तो मरेंगी, बट आपके फूड पे भी तो चला जाएगा ना वो केमिकल. Luckily, there's also a completely safe way for you to get rid of fruit flies in your house. तो एक safe way है. Let's see what that is. The first step, तो मेथड की बात कर रहे हैं ऑथर. The first step is for you to remove all fruits or vegetables from your counter. शेल्फ से हटा दें सब कुछ. Store these items in the refrigerator or in sealed containers. उनको proper, like Tupperware है ना, proper
सील्ड कंटेनर पैक करो या फ्रिज में रखो। क्लीन अप एनी स्पिल्ड जूस और बिट्स ऑफ फूड दैट माइट बी ऑन द फ्लोर। बेसिकली किसी भी एक्सपोज सरफेस पे कोई भी जूस या कुछ भी नहीं होना चाहिए फ्रूट या वेजिटेबल का। टेक आउट द ट्रैश एंड एम्प्टी द रिसाइकलिंग बिन। अपना सारा डस्टबिन एवरीथिंग खाली करें। वॉश एनी डर्टी डिशेज दैट आर इन योर सिंक। बेसिकली कहीं पे भी कोई भी फूड पार्टिकल कुछ भी नहीं होने चाहिए। Doing all of these things will stop new fruit flies from finding food or places to lay their eggs. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट उन्हें नई जगहें नहीं मिलेंगी जहाँ पे वो अंडे दे सकती हैं। नेक्स्ट, मेक अ ट्रैप टू कैच ऑल ऑफ द रिमेनिंग फ्लाइज इन हाउस। फिर बाकियों को पकड़ने के लिए ट्रैप बनाएं। फर्स्ट, फिल अ स्मॉल bowl with a few tablespoons of vinegar. Tablespoon is kadchi. Teaspoon is the small spoon which we use for tea and other condiments, whereas tablespoon is like big or kadchi of vinegar. So usme we need to use a small bowl, a few tablespoons of vinegar, then put a piece of very ripe or rotting fruit into the vinegar. तो वो जो एक अच्छा कोई राइप पीस या रॉटिंग सड़ता हुआ फ्रूट का पीस लेके उसको विनेगर में डिप कर दो। कवर द बोल वेरी टाइटली विद अ शीट ऑफ प्लास्टिक रैप। तो उस पर रैप लगा दें प्लास्टिक प्रॉपरली एंड पोक अ फ्यू वेरी स्मॉल होल्स। पोक होल्स इज अ वेरी कॉमन फ्रेज। पोक होल्स का मतलब है उसमें होल्स करना। ठीक है, पोक्स अ फ्यू होल्स इन द रैप विद अ फोक। If all goes according to plan, the flies will enter the trap through the holes but will be unable to fly back out. तो अगर आप ठीक से इस मेथड को यूज़ करेंगे, फ्लाइज विल एंटर दैट बोल थ्रू द होल्स जो आपने किए हैं, बट वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। दिस ट्रैप विल कैच ऑल ऑफ द रिमेनिंग फ्रूट फ्लाइज। इससे सारी की सारी फ्लाइज कैच हो जाएंगी। यू कैन आइदर किल दीज फ्लाइज और रिलीज देम आउटडोर्स, कि या तो आप उन्हें मार सकते हो या फिर उन्हें बोल को बाहर रिलीज कर दो सो दैट कि फ्लाइज बाहर चली जाए। फ्रूट फ्लाइज कैन बी अ पेस्ट। ये एक पेस्ट है, फॉर्म ऑफ इंसेक्ट, बट दे डू नॉट हैव टू मेक यू क्रेजी। पर इनसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद अ लिटिल एफर्ट यू कैन गेट एग्जिस्टिंग फ्लाइज आउट ऑफ योर हाउस एंड प्रिवेंट न्यू वन टेकिंग ओवर योर किचन। अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे, ये एफर्ट डालेंगे, तो आपके हाउस में जितनी भी इस तरह की फ्लाइज हैं वो चली जाएंगी और नई वाली भी नहीं आएंगी। ओके, सो दैट वाज द पैसेज। लेट्स गो टू क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। इन रीडिंग दिस पैसेज वी लर्न दैट फ्रूट फ्लाइज डैश। तो आपको ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन कि कौन से वाले कॉम्बो ठीक हैं। तो पैसेज के अकॉर्डिंग डाई इमीडिएटली आफ्टर दे ले देयर एग्स, क्या ऐसा कुछ मेंशन था कि वो एग्स देते ही मर जाती हैं? नो। कैन ग्रो इनटू अडल्ट्स ओनली आफ्टर ओनली 8 days, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, है ना? तो लेट्स गो बैक टू दैट स्लाइड। यहाँ पे 8 days मेंशन है ना, ये देखिए विद इन 8 days, तो दैट इज ट्रू, तो दिस इज करेक्ट। आर मोस्टली हार्मलेस, ये भी मेंशनड है। Fruit flies are annoying, but they probably will not hurt you. So they are not harmful. Okay. So this is also correct. ठीक है, that means कि हमें option C select करना है. Right? I hope this is clear. Let's move on. As used in paragraph 3, a nuisance is something that, मैंने आपको वहाँ पे भी meaning बताया था. Let's go to the passage. Word कहाँ है? ये रहा, है ना? Because they are such a nuisance. ये दे किसके लिए लगा है? Fruit flies के लिए. मैंने आपको pronoun technique सिखाया ना, तो ask yourself कि what is this they referring to? However, most people want to get rid of these pesky bugs as quickly as possible. ठीक है, तो nuisance है मतलब ये bother करते हैं, तंग करते हैं, ठीक है, something that bothers you. Okay. कैन बी डेंजरस तो नहीं है, डेंजरस वाला नहीं है, यहाँ पे ग्रो फास्ट का भी कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं था, है ना, एंड इज वेरी स्मॉल, नो, सो इट
bothers you. Next, according to the passage, why should you not use pesticide spray to kill fruit flies? आपको spray क्यों नहीं use करना? वहाँ पे mention था ना spray के बारे में. Let's go back to the passage. बिल्कुल easy level RC से कर रहे हैं बच्चों, so that आपको एकदम अच्छे से comprehension होना start हो. Okay. ये देखिए, यहाँ पे sprays की बात given है. Some people use pesticide sprays on the fruit flies. Although this will kill the flies, it will also spread harmful poison all over your kitchen. तो इससे क्या होगा? Flies तो मरेंगी ही मरेंगी, आपके food में भी poison जाएगा. Most sprays do not actually kill all of the fruit flies. No, ऐसा कुछ mention नहीं है कि कितनी flies मरती हैं, कितनी efficiency है उस spray की. Buying sprays can get expensive if you need to use a lot of them. Nothing has been talked about the cost of these sprays, the price of these sprays. The sprays take too much time to work. उनको use करने में बहुत time लगता है, ऐसा कुछ mention नहीं है. It can be dangerous to use them in your kitchen. Yes, they spread poison all over your kitchen. That is why answer is D. हाँ जी, clear है ना सबको ये? Please mention in comments if you have any doubts. I'll address you. Based on the information in the penultimate का meaning साथ में दिया है next to last. So penultimate किसी भी चीज में हो, that is always second last. ठीक है? We can understand that the author thinks that. तो हम penultimate paragraph पे चलते हैं. ये penultimate paragraph क्या था? This is the last paragraph, this line. ठीक है, ये वाला portion. This is the penultimate, starting from next. देखते हैं. तो यहाँ पे तो उन्होंने ट्रैप बनाने का मेथड बताया था ना, विनेगर लें, बोल लें, फ्रूट का पीस लें, उसमें प्लास्टिक लगाएं, होल्स करें, ठीक है, और फिर उससे फ्लाइज एंटर कर जाएंगी और बाहर नहीं जा पाएंगी. दिस ट्रैप विल कैच ऑल ऑफ द रिमेनिंग फ्रूट फ्लाइज, सभी में कैच हो जाएंगी. यू कैन आइदर किल दीज और रिलीज देम आउटडोर्स, कि आप इन्हें मार भी सकते हैं, बाहर भी छोड़ सकते हैं. लेट्स गो टू दी ऑप्शंस. ओके, Based on the information in the penultimate paragraph, we can understand कि author क्या सोचता है. हमें author का thinking process बताना है. Some people do not mind having fruit flies in their house. नहीं, ऐसा तो नहीं है. उन्होंने कहा था ना कि इससे सारी की सारी flies आप catch कर लोगे जितने भी हैं. तो I don't think this is what he is thinking. Some people do not like killing insects. Yeah, this is a possibility. Why? क्योंकि लास्ट में ऑथर ने बोला ना कि आप चाहें तो इन्हें मार सकते हैं, चाहे तो इन्हें रिलीज कर सकते हैं आउटडोर्स. इट्स अ पॉसिबिलिटी. लेट्स पुट अ पेन ऑन इट. फ्रूट फ्लाइज डू नॉट लाइक विनेगर. ये ऑब्वियसली नहीं होगा. वाई? अदरवाइज वो विनेगर देता ही क्यों, है ना? ही वुड नॉट हैव सजेस्टेड यूजिंग विनेगर इफ दिस वर ट्रू. द ऑप्शन मेकिंग अ फ्रूट फ्लाई ट्रैप कैन बी डिफिकल्ट. ऐसा भी मेंशन्ड नहीं है. इट कैन नॉट बी इन्फर्ड because it's a very simple method which author has illustrated. So we are left with only option B. और अगर ध्यान से जाएं हम उस पैराग्राफ में, तो लास्ट लाइन में ऑथर ने क्लियरली ये कहा है that some people you can kill or release them. मतलब he considers that possibility कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो मारना नहीं चाहेंगे फ्लाइज को. So that leaves us with the option B. Right? That was it about the passage. I hope you learned something. Guys, again, ऐसा मत सोचिए अगर आप if you are thinking कि ये बहुत easy level है, but I am sure इसमें से भी कुछ words आपको new मिले होंगे. फ्रूट फ्लाई के बारे में पता चला होगा. फ्रूट फ्लाई का नाम ये होता है. उसके इमेजेस सर्च करिए, है ना. लुक एट व्हाट इट इज. राइट. सो बिल्ड योर क्यूरियोसिटी, बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड थ्रू रीडिंग, एंड यू विल फाइंड दैट यू विल स्टार्ट enjoying reading comprehension. ठीक है. So we'll meet you in the next video with another RC, and keep dropping your comments about how you like the RC या कुछ और आपको doubts आ रहे हैं. I'll help you with all that. Thank you. Signing off. Bye-bye.